हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The non-cooperation movement is a 1920 to 22. There is a most important non-cooperation movement. Gandhiji, by this time, was the convinced that is a non-useful purpose would be served by their supporting the government. He was also emboldened by their earlier success in Bihar. In the light of the past and even there is action of British government, he decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed the Royal Act in 1999, and his threatened of the start of non-cooperation movement in case of the government fail to be accept his demand. Why do you think Gandhi protests against the act? There is a most important question. Why do you think Gandhi protests against the act? It was because the act gave the government evidential power of repress political activities and allowed a detention of the political prisoner and without any trial for 2 years. Gandhiji wanted non-violent civil disobedience against such an unjust law. The government paid no heed to it. Gandhiji, before the start his non-cooperation movement in August 1920. In this was the appeal to be a people not to cooperate with the British government. At this time, the Caliphate movement started by the Muslim and their non-cooperation movement by the Gandhiji emerged into one common confirmation against the British government. For this, Gandhi is led down to the liberate a program, surrender of title and the honorary officer well as the resignations from the nominated seat in the local bodies, and refusal of the attend to the official and non-official function. Gradually withdraw of their children from the officially controlled school and colleges. Gradually boycott of British court by the lawyers and litigants. Refusal on the part of the militaries and syndicals and the laboring classes for offered themselves to the Syriot for the service and Mesopotamia. Mesopotamia and the 6 year boycott of election to be legislative counseling by the cabinet and voter, and boycott of foreign goods and national school and colleges. It was thus supplemented with their constructive program, which had three principal features: promotion of Swadeshi, and particularly hand swing and the wavings, and removal of the untouchability among to the Hindu, and promotion of Hindu-Muslim unity. There is a most important promotion of the Hindu-Muslim unity. Due to this appeal of Gandhiji and the unusually his presence overtook a country, a large number of people dropping their difference took part in the movement. Over two-thirds of the voters obtained from taking part in the election to be councillor and held to the November 1920. Thousands of the students and teachers left their school and colleges. A new India educational is a center were started by them. Lower like Motilal Nehru. Motilal Nehru is C.R. Das and C. Rajagopalachari and Asif Ali boycotted their court. Legislative assemblies were also boycotted and foreign goods were boycotted and their clothes were put on the bonfire. But during this moment, some incident took place that did not be catch with there is a view of Gandhi. The non-violent and non-cooperation movement which started the Scopus there is marked by the violence in August 1921. The government started taking a serious action and permanent leader were arrested. In a 2 month, nearly 30,000 people were imprisoned and the outbreak of violence at attention of Gandhi. Non-violence took place in the February 1922. There are 9 February 1992. At a Chorachori village in there is a Gorakhpur district of UP. There is a non-violence took place in February 9, 1922 at the Chorachori is a village in there is Gorakhpur district of UP.
This was followed by the more violence and rallies, and Gandhi suspended his non-cooperation on February 14, 1922. He was arrested at Ahmedabad on March 18, 1922, and the sentenced there is a 6 years a simply imprisonment. The non-cooperation movement failed to be achieve success. Yet it succeeded to be prepare a platform for the future movements. After taking back their non-cooperation movement, Gandhiji and followers were busy in the create actives in the village area. By this is a give of the masses of people removed to caste base in the ministry. There's an important here. The Gandhi is here allowing there is a give of there is a message for the people remove the caste base. The animosity. They're important here. On your screen, there is a most important moment here. The Gandhiji is here. This is an important moment. C.R. Das and Motilal Nehru and other is like a mandate a person hatched out of the Nobel's plan of non-cooperation from within the reforming councils. They formed the Swaraj Party on January 01, 1923. C.R. Das was the president of the party and Motilal Nehru was security. There is a Swaraj Party. The Swaraj Party is established here on January 01, 1923. The C.R. Das was the president of party and Motilal Nehru is the security. The party was described as a party within the Congress and not a rival organization. But they could be neither end and nor named to the Act of the 1919. In 1927, British government appointed a commission under to the chairship of the Sir John Simon. The commission was appointed by study their reform of 1919 and suggests a further measure for the constitutional reform. The commission had no Indian member in it. The Indian is a boycott this all the white commission. And therefore, when there is a commission arrive in India, it face a protest all over the country. There is a black flag where showing and demonstration there are hartals take place all over the country and cry of the Simon go back. The Simon go back has a hearted. And this demonstrator stated there was a lathis charge at the number of placed by the British police. These demonstrators were a lathi charge at the number placed by the British policy, and he was called Simon Go Back. Lala Rajpat Rai was severely assisted by this police, and he just assumed there his injury. This aggression against the Simon Commission gave a new strength of the national movement of India. The meanwhile, the Indian political leaders were busy in drafting as a constitution, and this is known as a Nehru Report, which formed to the outline of the constitution. Among its important recommendations there is a declaration of right and parliamentary system of government, a dual franchisee and the independent judiciary with there is a Supreme Court at its head. The most of recommendation formed the basis of the Constitution of Independent India, which by adopted more than 20 years later. At the historical annual session of Congress in Lahore in 1929, the Congress committed itself to a demand of the Purna Swaraj, or complete independence, and issue as call to be a country to celebrate 26th January and Purna Swaraj Day. Their Purna Swaraj Day is the first time celebrated here on January 26, 1930. The Congress celebrated here. Independent Day. The first declared is a Purna Swaraj Independent Day here on January 26, 1930. The Congress here thinking Independent Day. On the day is 1950, the Constitution of Independent India was adopted and making India is a slogan as a democratic, socialist and republic. And then January 26 is celebrated as a Republic Day. उसके पश्चात है असहयोग आंदोलन. देखिए ये असहयोग आंदोलन जो है भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो 1920 से 22 तक चली थी. उस समय तक गांधी जी समझते थे कि सरकार को समर्थन देकर कोई उपयोगी काम नहीं हो सकता है.
क्योंकि जब सरकार गलत हो तो उसका सहयोग देना कभी भी सही नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का सोच था कि सरकार को समर्थन देकर कोई उपयोगी काम नहीं हो सकता है। बीती घटनाओं के प्रकाश में और ब्रितानी सरकार कार्य के बाद उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी, जैसे सरकार को अमृतसर की घटना पर पछतावा व्यक्त करना चाहिए और जैसे तुर्की के प्रति उदार प्रवृत्ति दर्शानी चाहिए और भारतीयों की संतुष्टि के लिए सुधार की गई नई योजनाएं आरंभ करनी चाहिए। ये गांधी जी उस समय जो है अंग्रेजों से एक्सेप्ट करते थे। इस सरकार उसे मांगों को स्वीकार करने में असफल हुई तो उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी दी, क्योंकि सरकार को उन्होंने पहले चेतावनी दिया कि इन बातों पर अनुसरण नहीं होगा तो उनको जो है असहयोग आंदोलन को सहना पड़ेगा। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार गांधी जी ने अपना जो है असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में आरंभ कर दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से ब्रितानी सरकार के साथ न देने की वो अपील की। कहते हैं महात्मा गांधी जी भी ये बात समझते थे कि जब प्रशासन जो है गलत रूल रेगुलेशन अपना रहा हो तो उसको साथ देना कदाचित उचित नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ देते हैं वो उतना ही दोषी कहलाता है। और इसी समय मुसलमानों के द्वारा आरंभ खिलाफत आंदोलन और गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बना दिया, क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन भी चलाई गई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी चलाए। इन सब के लिए गांधी जी ने एक विस्तृत कार्यक्रम तय किया, यानी देखा जाए तो उन्होंने एक कार्यक्रम बना लिया। पहला तो उन्होंने ये किया कि पदवी तथा सम्मान लौटाए जाए, कार्यालय तथा स्थानीय निकास के पदों से त्याग पत्र दे दिया जाए, कार्यालय और गैर कार्यालय के कार्यों में उपस्थित होने से इनकार कर दिया जाए, सरकार के द्वारा संचालित विद्यालयों तथा कॉलेजों धीरे धीरे छात्रों को हटा लेना चाहिए और वकीलों के द्वारा ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार करना चाहिए, सैनिक लिपिकों और मजदूर वर्गों को सेवा की नियुक्ति का इनकार कर देना चाहिए और विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों और मतदाताओं का बहिष्कार करना और विदेशी सामान का बहिष्कार करना, ये मुख्य गांधी जी का उपदेश था। यहाँ पर आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत हुआ है, महात्मा गांधी जी हैं जो आंदोलन के अंतर्गत अपना भाषण जो है जनमानस को दे रहे हैं और उनको जो बता रहे हैं कि अंग्रेज किस मानने में जो है भारत के लिए सही नहीं है। राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। उसके बाद में सूचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा इसे बढ़ाया भी गया, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। स्वदेशी को बढ़ावा देना और खासकर हस्तकरघा और बुनाई का, यानी उनको पता था गांधी जी को कि जब तक हम अपने सामान स्वयं नहीं बनाएंगे हम स्वदेशी नहीं कहलाएंगे। अब देखिए आज के समय में विदेशों से आके कंपनियां भारत में जो है सामान बना रही है और हम कह रहे हैं स्वदेशी है, लेकिन शायद ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामान जितने भी होते हैं सब बाहरी देशों से आते हैं, सिर्फ यहाँ पर असेंबल होता है, तो इसका मतलब ये स्वदेशी नहीं हुआ। कहते हैं जब भारत में सामानों का मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा, जब हम खुद ही अपनी मटेरियल यूज़ करने लग जाएंगे, तब वो स्वदेशी कहलाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने ये बात साफ शब्दों में कह दिया कि स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा देना, हिंदुओं में और अस्पृश्यता का अंत होना। देखिए हिंदुओं में जो छुआछूत की भेदभाव थी उसको सदैव के लिए जो है नष्ट कर देना, तभी जो है अंग्रेजों से हम दो चार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। आज के समय में देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने के जो है पीहोर में लगे हुए हैं सभी नेता लोग सब और बाबा लोग सब, लेकिन उस समय गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की वकालत कर रहे थे। तो क्या आज मंत्री लोग ये बात भूल गए हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना महात्मा गांधी की प्राथमिकता थी और उनको पता था कि जब हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक देश जो है सुचारू रूप से ग्रोथ नहीं कर सकता। गांधी जी के इसी अपील के कारण देश में असाधारण जोश फैल गई, सभी में जोश आया और सभी ने उनकी बातों को जो है अनुसरण किया और बड़ी संख्या में लोगों ने आपसी मतभेद छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए हम आज़ाद किस कारणों से हुए, जब हिंदू मुसलमानों ने जो है आपसी भेदभाव छोड़ के आंदोलन में भाग लिया तब जाके भारत आज़ाद हुआ। अब सोचिए आज के समय में अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं या हिंदुत्व की प्रलाप गाया गया तो कितनी बड़ी जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है जनमानस को। कहते हैं एक लोगों के कारण कई लोगों की अपनी जान तक चली जाती है और ये शायद
आज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। 2/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने नवंबर 1920 में एक काउंसिलिंग के चुनाव में भाग लेने से परहेज कर दिया और हजारों छात्रों और शिक्षकों ने अपने विद्यालय और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा उन लोगों के द्वारा एक नए भारतीय शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने और राजगोपालचारी और असफ अली जैसे वकीलों ने न्याय का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा का भी बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थी। अहिंसक असहयोग आंदोलन के शुभ आरंभ के बाद अगस्त 1921 में हिंसा का दाग लग गया। यानी कहते हैं विचार एक धारा नहीं था। गांधी जी जो अहिंसक नहीं कोई रूल रेगुलेशन अपनाना चाहते थे, लेकिन 1921 में एक दाग लग गया। सरकार ने भी गंभीर कार्रवाई आरंभ कर दी और महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिंसा फैलने से गांधी जी ने चेतावनी दी। उग्र भीड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी गांव में 9 फरवरी 1922 को जो है हिंसा फैली और इसके बाद बरेली में हिंसा का एक और घटना हुई। कहते चौरी में जो है घटना घटी जहां पर 22 पुलिस कर्मचारियों को पुलिस थाने में बंद करके उनको जला दिया गया और ये हिंसा बहुत ही दर्दनाक था। इसी कारण से जो है और बरेली में हिंसा की एक घटना और हुई, जिसके वजह कारण जो है गांधी जी ने 14 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया, यानी स्थगित कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इन घटनाओं में लोग जो है अहिंसा का सहारा लेने लग गए और जिसके कारण महात्मा गांधी को चिंता होने लगी, क्योंकि इस हिंसा में कहते हैं ब्रिटिश अफसर का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जो सिपाही मारे गए वो भी इंडियन ही थे। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि अपने लोगों को मार के जो है कोई भी चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने 14 फरवरी 1922 को 2 घटनाएं, चौरी की घटना और जो है बरेली में हिंसा की घटना देख के उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन आपस स्थगित कर दिया। उन्होंने 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में उनको पकड़ लिया गया और 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। यानी गांधी जी को 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में पकड़ लिया गया और उनको 6 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई। असहयोग आंदोलन आपस लेने के बाद गांधी जी और उनके अनुयायी ग्रामीण क्षेत्र में सृजनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहे और इसके द्वारा उन्होंने लोगों को जाति आधारित वैषम्य को हटाने का संदेश दिया कि जाति संबंधी जो वकालत गांधी जी ने उस समय में भी की थी, जो जरूरी था। CR दास, मोतीलाल नेहरू और दूसरे एक जैसे विचार वाले लोगों ने पुनर्गठित काउंसिलिंग के भीतर से ही असहयोग की एक नई योजना का जो सृजन कर दिया और उन लोगों ने कहते 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया और CR दास पार्टी के जो है अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव थे। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कि 1 जनवरी 1923 में की गई थी और इसके मेन अध्यक्ष जो थे CR दास थे और यहाँ पर सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। पार्टी के बारे में कहा गया कि ये कांग्रेस के भीतर ही पार्टी है, न कि इसके विरोध संगठन है। लेकिन वे न तो 1919 के कानून का अंत कर सके और न ही बदलाव कर सके और 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया और कमीशन की नियुक्ति जो थी 1919 के सुधार के अध्ययन तथा आगे का संवैधानिक सुधार के मापदंड तय करने के लिए किया गया। कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब वह कमीशन भारत पहुंचा तो भारतीय ने इसे जो है ऑल वाइट कमीशन यानी वर्ल्ड वाइड कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया, यानी सारे के सारे अंग्रेज कह के उन्होंने बहिष्कार किया और इससे पूरे भारत में विरोध का सामना करना पड़ा और वहाँ पर काले झंडे भी दिखाए गए। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ और आवाज़ सुनाई दी। हर जगह जो था साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा गूंजता रहा और इस प्रदर्शन पर बहुत जगह जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाठीचार्ज भी करवाया गया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की बुरी तरह से पीटा गया और इस चोट के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ यह विरोध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दे दिया। कहते लाला लाजपत राय की मृत्यु बेशकली हो गई, लेकिन लाला लाजपत राय ने साफ कह दिया था
कि मेरे ऊपर जितनी भी लाठी बरसाई गई है, जितनी भी लाठी मुझे लगी है, और ये सारी लाठी जो है अंग्रेज़ों के लिए जो है ताबूत में कील का काम करेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रही और ये साबित भी हुआ। इसी बीच भारतीय राजनीतिक नेता संविधान बनाने में व्यस्त हो गए और यह नेहरू रिपोर्ट ही है जिसके संविधान के निर्माण में कैसे हो की भूमिका तैयार किया गया। और इसकी मुख्य सिफारिश थी अधिकारों की घोषणा, सरकार के संसदीय प्रणाली, व्यास मताधिकार और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च न्याय सबसे ऊपर हो। इसकी अधिकतम सिफारिश स्वतंत्र भारत के संविधान के मुख्य आधार बनी, जिसे लगभग 20 वर्षों के बाद अपनाया गया। कहते 1929 के लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पुण्य स्वराज की मांग का निश्चय किया। यानी देखा जाए तो 1929 के लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पुण्य स्वराज की मांग रखी, अर्थात पुण्य स्वतंत्रता तथा पूरे भारत में 26 जनवरी के दिन को पुण्य स्वराज दिवस मनाने का ऐलान भी किया गया और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पुण्य स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। इसी दिन 1950 में स्वतंत्र भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसके भारत को संप्रभुता लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाया। तब से ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का संविधान जो है बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और देखा जाए तो 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। कारण था कि इसको हम एक यादगार दिन के रूप में इसको मनाएं। और हमें पता है कि पहला स्वराज की जो मांग की गई थी, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी, वो 26 जनवरी 1930 को मनाई गई थी। 26 जनवरी 1930 को मनाई गई थी पहला स्वतंत्रता दिवस, यानी पुण्य स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन को याद रखने के लिए हमारा जो है संविधान 1950 में 26 जनवरी को ही लागू किया गया और इसलिए हमारा जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी बात को याद रखने के लिए ये सारे जो है कार्य किया गया।